Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your biology teacher Johar Abbas from PMS Voice 5 and today is your 5th class. In the previous class we have learnt about the linkage of biology with different fields of study, and under this topic we have discussed biophysics, the linkage of biology with physics, the biochemistry, the linkage of different chemical phenomena with life and biology, the biogeography, the linkage of the different geographical regions on the earth with the different varieties of life that are specific to them, biostatic or biometry, the application of mathematical and statistical formulas in the field of biology, and bioeconomics, the study of the biology and different organisms for the enhancement of economy or the study of organisms that are important from economical point of view. Today our topic is careers in biology, which is being mentioned in your book at page number 5. You all are requested to please open your books at page number 5. careers in biology यानी biology पढ़ने के बाद हम फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी में कौन से करियर्स, कौन सी जॉब्स, नौकरियां या क्या काम कर सकते हैं। बियोलॉजी हमें हमारी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ में किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकती है, किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी different careers should be adopted. Some of them are discussed below. यानी बायोलॉजी पढ़ने के बाद डिफरेंट करियर्स को एडॉप्ट किया जा सकता है, चूज़ किया जा सकता है, चुना जा सकता है, जिसमें से कुछ जो हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, इट इज़ द मोस्ट कॉमन। जब कभी भी आप बायोलॉजी की बात करोगे सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा, दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी, दवाइयाँ और सर्जरीज वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह। द फील्ड ऑफ बियोलॉजी इज़ रिलेटेड the field of medicine is related with the diagnosis and treatment of human diseases. मेडिसिन्स की फील्ड जो है इसका ताल्लुक है किसके साथ? डायग्नोसिस का मतलब है टू फाइंड समथिंग, पता लगाना, किस चीज़ का? ह्यूमन डिजीज़ का। द डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज़, कोई सिम्टम्स, कोई अलामात नज़र आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर हो रहा है, उसके साथ शिवरिंग हो रही है, उसके साथ जो है वो डिफरेंट आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुंह का टेस्ट ठीक नहीं है या इस तरह की कोई सिम्टम्स, कोई अलामात आ रहे हैं, तो जब हम मेडिसिन पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट मेडिसिन, सो वी आर एबल टू डायग्नोज दैट on basis of these symptoms the patient or the person is suffering from what kind of disease। यानी जो इंसान है अगर उसको कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, तो प्रोबेबली कौन सी बीमारी हो सकती है, वो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, दिस इज़ नोन एज डायग्नोसिस, पता लगाना, उसके बारे में जानना। एंड ट्रीटमेंट, यू नो दैट ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। जब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डायग्नोस on the basis of the symptoms, then after diagnosing we have to suggest the different medicines in order to treat the disease, in order to keep the patient safe from the harmful effects of disease, or to keep the patient away from the disease। यानी पेशेंट को बीमारी से रिकवर करने का, टू हेल्प द पेशेंट फ्रॉम रिकवरिंग ऑफ डिजीज़, उस डिजीज़ से रिकवर करने में, अपने आप को ठीक करने में हम उसको हेल्प आउट करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज ट्रीटमेंट। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरीज में, ऑपरेशंस में जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जो किसी वजह से डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर दोज पार्ट्स that are not working properly due to certain reasons, they are either repaired, they can be repaired, if they are not able to repair, they are replaced or removed. First of all we try to repair them by utilization of different drugs and medicines in the form of tablets, in the form of injections, in the form of drips, in the form of different kind of medicine, and
If it is not able to repair, then the doctor suggests to remove it or replace it. Either to remove it, रिमूव कौन सा हो सकता है, बाइल पित्ता आपने देखा होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, इफ इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इट इज़ नॉट एबल टू रिपेयर then and it cannot be replaced, so the doctors suggest to remove it, उसे remove कर दिया जाता है. In case of kidneys, we are having 2 kidneys in our body. If one kidney is not working properly, the kidney is removed. If both kidneys are not working properly, then the doctor suggested to replace it. फिर उसको replace करना पड़ता है, आपके सेम चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसे बंदे से किडनी को रिसीव किया जाए, कोई ऐसा बंदा आपको किडनी डोनेट करे जिसके साथ आपका ब्लड ग्रुप मिलता हो. मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. मोस्टली इन मोस्ट केसेस द फैमिली मेम्बर्स आर सजेस्टेड टू डोनेट डिफरेंट ऑर्गन्स. सिमिलरली आपने सुना होगा बाईपास सर्जरीज के बारे में. यू नो दैट अबाउट द बाईपास सर्जरीज, जिसमें कि आप दिल के वॉल्व ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, वॉल्व्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, सेल्स डेड हो जाते हैं. तो पहले तो उनको ट्रीट किया जाता है. अगर वो ट्रीटमेंट जो है वो ठीक ना हो, दैन दी डॉक्टर सजेस्ट टू ऑपरेट इट. उसको ऑपरेट करके उसको रिप्लेस किया जाता है. ठीक है, रिप्लेस क्या चीज़ होती है, उसके अंदर छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, द एओर्टा दैट इज़ बीइंग ड्राफ्टेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी. इट इज़ बीइंग केप्ट एज द extra parts by Allah Ta'ala in our body, in our legs and in our arms. Different blood vessels are being kept by Allah Ta'ala and they are extra there. Why Allah Ta'ala ने ऐसा क्यों किया? Why Allah Ta'ala did that? क्योंकि अल्लाह जानता था कि अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो ह्यूमन बींग्स उसको ट्रीट करने के काबिल हों. In surgery, the defective parts of body are repaired, replaced or removed. One can choose these professions in the same course, MBBS, after studying biology at higher secondary level. Second year में, college में, after studying secondary levels, after your second year, you can choose MBBS as a study program, and after completing your degree, after getting the MBBS degree, you will be a doctor. MBBS, Bachelor of Medicine. MBBS is the abbreviation of Bachelor of Medicine and Bachelor of Sciences. यानी कि आप MBBS करने के बाद डॉक्टर बन सकते हो. और फिर आफ्टर completing your MBBS, if you want to continue that, you can go for specialization that you have listened, that eye specialist, the brain specialist, the heart specialist and different specialists होते हैं. उन्होंने ये MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन की होती है, जिसकी बेसिस पर वो डॉक्टर बन जाते हैं. सेकेंड टॉपिक इज फिशरीज, मछलियाँ. इट इज़ प्रोफेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस. इस करियर का ताल्लुक जो है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस. हाउ टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फिशेस, बिकॉज फिशेस जो हैं हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करती हैं. फिशेस आर एबल टू फुलफिल आवर फूड रिक्वायरमेंट्स एज वेल. वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, we use different kind of fishes as food, so they are responsible to fulfill the food requirements of the human beings as well. Fisheries managers works in fish hatcheries and study fish habitats, nutrition requirements, genetics and diseases. हैचरीज कहते हैं वो कंपनीज जहाँ पर फिशेस को हैच कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अंडे से निकलना. जो ऑर्गेनिज्म जब अंडे से निकलता है उसको कहते हैं हैचिंग. तो फिश हैचरीज कंपनीज होती हैं, ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये कारखाने होते हैं जहाँ पर मछलियों को उनके अंडों से निकलने के बारे में उसकी स्टडी की जाती है. हैबिटाट के बारे में स्टडी किया जाता है. व्हाट इज़ हैबिटाट? हैबिटाट इज़ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. किसी भी जानदार के रहने की जगह को हैबिटाट कहा जाता है. फिशेस की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है कि कौन सी खुराक उनको दी जाए ताकि वो हेल्दी रहें और उनकी प्रोडक्शन और उनकी प्रोजेनीज जो है उनकी जनरेशन प्रॉपर्ली चल सके. और उनकी जेनेटिक्स, यू नो दैट जेनेटिक्स, व्हाट इज़ जेनेटिक्स? सर एहसान ने आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जेनेटिक्स के बारे में बताया है. द ट्रांसफ़र ऑफ स्ट्रेन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज जेनेटिक्स.
तो फिशरीज़ में हम फिशेज़ की जेनेटिक्स को भी स्टडी करते हैं, उनकी हैबिटाट को स्टडी करते हैं कि किस तरह के एनवायरनमेंट में कौन सी फिशेज़, कौन सी जेनेटिक्स वाली फिशेज़ सर्वाइव कर सकती हैं, और हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं कि मछलियों की क्या बीमारियां हैं और उनको डिजीज़ से किस तरह सेव रखा जा सकता है। One can adopt this career after completing bachelor or master degree in zoology. Zoology, you know that zoology is the study of animals and fishes are the animals. तो zoology पढ़ने के बाद हम फिशरी डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं। आफ्टर दैट द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस program is agriculture. A biologist can also choose his or her career as an agriculturist who deals with crops and livestock. कोई भी बंदा biology पढ़ने के बाद agriculture ज्वाइन कर सकता है। Being as agriculturist, you should have the knowledge about the crops. पौधों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में आपको पौधों के बारे में नॉलेज दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, यू विल बी थॉट दैट व्हाट प्लांट्स आर grown in the summer season, what plants should be grown in the winter season, what are the evergreen plants, what are biennial plants, what are perennial plants, what are annual plants, what are cereal plants, what plants are the fruit production plants, and different type of plants are being taught in the field of agriculture. And other thing is livestock. स्टॉक कहते हैं ज़ख़ीरे को, लाइफ कहते हैं जिंदा को। लाइफ स्टॉक जिंदा ज़ख़ीरा, इसमें लाइफ स्टॉक में आपके पास डेयरी एनिमल्स आ जाते हैं जो दूध देने वाले जानवर हैं। काउस, बफलोज, गोट्स, शीप्स, द एनिमल्स फ्रॉम विच वी कैन गेट मिल्क, मीट, वूल, eggs. All these kind of animals are termed as livestock. In Pakistan, there are agricultural universities where one can do professional courses in agriculture after the higher secondary education in biology. पाकिस्तान में बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपके शहर पेशावर में भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, अगर आप में से किसी ने देखी हो, बहुत बेहतरीन प्यारी यूनिवर्सिटी है। तो आप सेकेंड ईयर करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेकेंड ईयर, यू कैन go there and take agriculture as your studies, and after completing the degree you will be an agriculturalist. You know that Pakistan is also an agricultural country. Pakistan एक ज़रई मुल्क है, तरक्की पजीर अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी वी कैन आल्सो जॉइन एग्रीकल्चर और टेक एग्रीकल्चर एज आवर करियर। बहुत सारी इसके अंदर प्लस पॉइंट्स हैं। एग्रीकल्चरिस्ट में वर्क इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारे मुल्क के अंदर, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो एग्रीकल्चर के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर आपने हैदराबाद की साइड पर आप जाओ तो रोड साइड्स पर और रोड के दरमियान में बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे हुए हैं, यानी खूबसूरत किस्म के फूल लगे हुए हैं। और अगर आपने कभी देखा हो तो वो एक बड़ा सा ट्रक और बड़ी सी गाड़ी जा रही होती है, उनको पानी दे रही होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। दैट इज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे कि व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, दैट इज़ अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरिस्ट होने की वजह से ये डिफरेंट जॉब्स को आप अवेल कर सकते हो। वेटरनरी जो है वही लाइफ स्टॉक हैं, वही एनिमल्स हैं, ऑल दोज एनिमल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीट, मिल्क एंड वूल। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल के बारे में आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, द इंडस्ट्रीज़ दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो मेडिसिन्स प्रोड्यूस करती हैं, दे आर टर्म्ड एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फूड इंडस्ट्रीज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे लेज़ है, पेप्सी वगैरह है। ये तमाम इंडस्ट्रीज़ में आप एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल करने के बाद, ऑब्टेन करने के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग और गेटिंग द डिग्री ऑफ एग्रीकल्चर, यू कैन ज्वाइन ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स एज ए एम्प्लॉय और एज योर करियर फ्यूचर। फार्मिंग, आप अपनी खुद की फार्मिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास रिसोर्सेज हों। एग्रीकल्चरल बैंक्स, देयर आर डिफरेंट एग्रीकल्चरल बैंक्स दैट आर वर्किंग इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा ZTBL, ज़रई तरक्याती बैंक। तो आप एग्रीकल्चर करने के बाद ZTBL वगैरह और एग्रीकल्चरल बैंक्स में भी जॉब्स कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज टॉपिक, दैट वॉज करियर्स।
about the biology or careers in the field of biology, जिसमें the first one was medicine and surgery, in which we study about medicine. The second was fisheries. After that was agriculture, and which is the most common career that is being adopted by the students of biology after completing their secondary and college level. Take care of yourself. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर बात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.